of Her Impact GDSC IIUI. And the purpose of Her Impact is to encourage and motivate those women who want to learn and grow. So, this session is basically a panel discussion on how freelancing can help empower women. We have Aruj Ishtiaq, who is a professional SEO based content writer, and Zohar Riaz Quresh, a certified professional. So, I think without wasting any further time, we should start the session. Ji, thank you so much for introducing. Are you getting my voice? Yes. Okay, sure. Thank you so much for introducing. So मैं अपना introduction करा देती हूँ. Basically, I have done BP honors from International Islamic University, and I'm graduating from batch 2020. Uh, Recently, I have been in certified HR professionals with degree of Masters in Business Administration from Zabest, and working in the field of freelancing in HR since 2017. Today just इसको as formal discussion लेते हुए कि चलते हैं कि I will be asking some questions from my team member Aruj, and he will be responding to the questions related to the freelancing. If anyone have the question, so they can respond in the chat box, so we can respond in case for कि आप लोग दोबारा माइक ऑन करके बोलें, तो जिसका जो क्वेश्चन होगा या कोई क्यूरी होती है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड किसी भी फील्ड में, एचआर से रिलेटेड या कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, तो वो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन बता देंगे. तो जैसे ही हम लोग अपने क्वेश्चनिंग या अपनी डिटेल्स ख़त्म करेंगे तो हम एट दी एंड आप लोगों की क्यूरीज और क्वेश्चंस जो हैं हम एड्रेस कर देंगे. अगर फ्रीलांसिंग की बात की जाए एचआर से रिलेटेड, तो टिपिकली एचआर से रिलेटेड इट इज़ बेसिकली डिफरेंट कि आप लोग अगर फ्रीलांसिंग को एचआर से रिलेटेड देखते हैं तो इन शॉर्ट हायरिंग से लेकर या आप लोग जब एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तब से लेकर दी एंड ऑन बोर्डिंग तक जब आप लोग हायर हो जाते हैं वो सारी चीज़ें आपकी फ्रीलांसिंग में आती हैं. तो अरूज इफ़ यू आर देयर तो अपना इंट्रोडक्शन करा दें ताकि फिर हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं. Hello, Assalamualaikum. This is Aruj Ishtiyaq. I'm a content writer and SEO expert for profession. I have been working since 2020. I hope आप सब ठीक है. The purpose of this session was mainly to help you guys understand कि how freelancing can help women build their own careers in a very respectable, in a very comfortable environment, and they can grow and they can learn without having to face the normal obstacles, the normal hurdles they usually face in the society, specifically in Pakistan. So that's the whole motive. Me and Zoha, we'll be going to have a discussion, kind of a conversation. It won't be much of a formal conversation. It will be much of what we actually have learned in these 4 to 5 years of our experience as a freelancer or as a specialist in our own fields. So whatever you feel कि जो आपकी suggestion है, आपका कोई contribution है, wherever you feel कि यहाँ पे ये चीज़ें और add होनी चाहिए, you can always pinch a message in the chat box, and we'll be catering to that. Thank you so much. Zoha, are you there? सॉरी ड्यू टू नेटवर्क कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था. जी अरूज, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ डिड यू स्टार्टेड द फ्रीलांसिंग, या आपने किस तरह अपना करियर स्टार्ट किया और क्या सोच के आपने अपना करियर स्टार्ट किया कि स्पेशली इन द कंटेंट राइटर, कि आजकल कंटेंट राइटर में आप किस तरह ग्रो कर सकती हैं. Okay, so मेरी journey start हुई थी back in 2020 when I did my FSC in pre-med. तो मैं उस वक्त medical के लिए apply करी थी. Like most of us in our society, the many students के जो MBBS के लिए कोशिश कर रहे होते हैं. And during my journey for MBBS, I didn't get my merit selected because of XY reasons. And I took a gap year. In that gap year specifically, I felt कि मुझे बहुत ज़्यादा space थी, बहुत time था मेरे पास, because no matter आप जितना मर्जी पढ़ लो,
the education itself isn't that an interesting factor for me कि जिसमें मैं आप मतलब पूरा day आप invest कर दो पूरा like you know it wasn't much interesting a passion kind of thing for me. So उस hurdle से उस mental stress से बचने के लिए I started writing. It was initially for a friend जिन्होंने मुझे कहा कि मुझे उनको कुछ चाहिए कोई content चाहिए and I was good in written and speaking skills so I told why not मतलब कर लेते हैं कुछ नहीं है. So back then it was just as a hobby. 2020 में start किया. Then I initially when I started working on it, I thought कि यार अच्छी skill है, I should learn it. So I took some courses, watched some YouTube tutorials and stuff like that. And on and off, I started picking some clients. And most of those clients were from Facebook, Instagram, or from direct contacts. I wasn't much eager to start Upwork or Fiverr or any other platform at that moment because my main goal was obviously my own studies. So when I was like discussion, when I started my own career in I'm a lab technologist by profession. So when I got selected, my university started and everything. But during my whole degree in those 4 years, I felt that content writing had been something कि जिसने मुझे ज़्यादा payback kiya comparative to other fields, comparative to my own field, I would say. I got some jobs, remote jobs, international companies के साथ जो है पाकिस्तान की companies के साथ आए. So I started working with them. SEO सीखना start किया. It was interesting because COVID के time पे आप हम में से अक्सर लोग ही free थे तो it wasn't much of a stressful moment कि पढ़ाई के साथ manage करना है. उसे पढ़ाई हम में से कोई कर भी नहीं रहा था more or less. So I started learning things. वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इन दोज 4 years. आई रिसेंटली हैव ग्रेजुएटेड इन 2024. सो इन 4 सालों में मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया, बहुत कंपनीज के साथ काम किया. SEO में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट फुल प्रोजेक्ट्स खुद लीड किए, देन कंटेंट में खुद लीड किए. I started working on my own profile on Upwork. I'm now a top rated seller on Upwork. So that was the whole journey itself. It started as a hobby, but when you start on working on something और आपको लगता है कि उसको monetarily respect wise any in any aspect अगर वो आपको पे बैक करना शुरू कर जाए, so why not do that, work on that spacing career. Even after graduation, I'm like right now working with certain companies on remote basis and I'm like working as a full-time content writer. And I believe कि मेरे जो fellow field के जो participants हैं, colleagues हैं, I'm earning way much more better than them and I'm working in a more comfortable environment than them. अच्छा अरूज, आप मुझे यहाँ एक चीज़ करने के आप सजेस्ट कैसे करेंगी कि आजकल अगर आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हम कैसे स्टार्ट करें, हमें किस तरह करना चाहिए, हम किस फील्ड में जाएं, हम किससे सजेशन लें. तो इसके रिलेटेड थोड़ा सा आप गाइड कर दें ताकि सबको ये भी आइडिया हो जाए कि किस तरह हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट करना है और हम किस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं जिससे हमें, क्योंकि आप जब भी फाइवर पे या अपवर्क पे अकाउंट बनाते हैं तो इट टेक्स ऑलमोस्ट मेनी टाइम्स के इम्प्रेशंस, आपको वर्क कोई नहीं आता, कोई ऑर्डर नहीं आता. तो इसके लिहाज से आपकी क्या सजेशन है, थोड़ा सा गाइड ओके, करें. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कि सबसे पहली चीज़ तो आपका अपना अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी फील्ड है. कभी भी ऐसा फील्ड चूज ना करें जिसमें आपका या तो आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा या जो चीज़ें आप एट द एंड ऑफ द डे गोल अचीव करना चाहते हैं वो आपको वहाँ से रिसीव नहीं हो रही. थिंक ऑफ इट इन विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल. हम में से अक्सर लोग डिग्री क्यों करते हैं या हम प्रोफेशन क्यों चूज करते हैं. एजुकेशन इटसेल्फ हमारी सोसाइटी में जो एक सोसाइटी अंडर प्रिविलेज है, हम लोग सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं कि यार कल कोई करियर बनेगा, एक जॉब करेंगे एंड विल बी अर्निंग मोर, लाइक विल बी अर्निंग हैंडसम अमाउंट की जिससे हमारी अपने खर्चे चल जाए. फीमेल्स के लिए होता है कि अपना मतलब अपना खर्चा चला लेना है, अपनी लाइक ख्वाहिशें पूरी कर लेनी है. और even some of us or I would say many of us are contributing to our home too. तो उस केस पे फिर आपको ये सोचना पड़ता है कि जो भी फील्ड में सेलेक्ट कर रही हूँ इज इट वर्थ इट, वो सेलेक्ट कर लिया. ट्राई टू स्टडी द सेम फील्ड. हमारे यहाँ थोड़ा सा एक ट्रेंड ये है कि हमने वही ऑर्थोडॉक्स किस्म की फील्ड्स चूज किए हैं और हम चाहते हैं कि बस डिग्री होगी. सबसे बड़ा जो टैबू मुझे फील होता है कि डिग्री होगी उसके बाद काम करेंगे. You don't have to like wait for 4 years of your bachelor's to start building your career. Never do that. क्योंकि आप 4 साल बाद अब इतना लेट हो जाएंगे कि आपके आगे कंपटीशन वाले आपसे डबल स्पीड पे मूव कर रहे होंगे. तो सबसे पहले अपने ट्रस्ट आइडेंटिफाई करें. Some of you might be interested in designing, video editing, data entry, content writing, SEO, कुछ भी. You have like each and every one of us uses Instagram, Facebook. आपको हजारों रील्स मिलेंगी ऐसे लोगों की जो इन लोगों चीज़ों पे काम कर रहे हैं.
So when you start working on these things, watch those reels, watch those kind of content कि जो वाकई में आपको impactful लगेगा, जो आपको contribute करेगा आपके understanding में. So once you have a clear understanding. देश का पूरे हिंदुस्तान में हर घर में पैसों के पेड़ लगा दूंगा. सवेरे सवेरे उठते के साथ ही 2000 की पत्ती तोड़ो और पूरे दिन भर खर्च करो. रात Okay, so the thing was कि आप लोग वहाँ से अपने fields को choose करें and start learning on it. हमारे यहाँ थोड़ा सा ये एक mishap है, एक tragedy है कि हम लोग सीखना बाद में शुरू करते हैं, काम हमें पहले चाहिए होता है. And I won't blame anyone for this. मैं भी शायद ऐसे ही करती because हमारी तो एक situation ऐसी है कि जिस तरह की हम financial strain में रह रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा time किसी ऐसी चीज़ पे नहीं लगा सकते जिसको हमें कोई financial benefit ना मिल रहा हो. बट अगेन विदाउट लर्निंग आपको कोई काम नहीं देगा. अगर आप किसी जॉब पे लैंड कर भी जाओगे तो यू आर गोइंग टू लूज दैट क्लाइंट बिकॉज ऑफ योर lack of understanding, lack of knowledge, your lack of expertise. Take 2 months, take 3 months, take 4 months, 5 months, depends upon कि आप कौन सा स्किल चूज कर रहे हो. जो बहुत टेक्निकल स्किल्स हैं वो ज़्यादा टाइम लेती हैं. जनरल स्किल्स हैं आपकी, राइटिंग स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, उनको डेवलप करो. ट्राई टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट्स. बाज़ दफ़ा आपका अपना फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा होता है बिकॉज मेनी ऑफ अस इन आवर फील्ड आर पीपल के जो सिर्फ आउटसोर्स करते हैं, वो खुद काम नहीं करते. They hire other people, they get the work done and they just get their commission. Even that's a great business. उनको at the end of the day without any मेहनत उनको इतना पैसा मिल रहा है. But what these people are expert in is their communication skills, the way they convince, the are passionate about what they're doing. So ये चीजें कर दें, सीखें. And once you're done with the learning process, आपको लगता है कि चलो like 100% नहीं, I'm done with a 60%, 70%. Start exploring. Use LinkedIn. LinkedIn is a massive platform कि जहाँ आपको बहुत कुछ मिल सकता है. Instagram, Facebook, आपको जहाँ से लगता है कि आपको एक client मिल सकता है, try to explore every field. But be aware, never fall for scams. There are some pretty common scams on Facebook, Instagram, or any other platform कि जिसको आप identify कर सकते हैं. Learn to identify those things and try to be aware of them. That's it. आप एक दफ़ा इन चीज़ों पे start करोगे, social media से start करोगे, then you can move to Upwork, you can move to Fiverr, you can move to people per hour. Anything जहाँ पे आपको अपनी convenience लगती है कि यार यहाँ से मुझे काम मिल सकता है, यहाँ पे शायद competition कम है या मुझे शायद कम investment के साथ काम मिल रहा है. Try to do that. In addition to freelancing, if you are getting any remote job, in addition to your studies or anything, part-time मिलती है, freelance मिलती है, project based मिलती है, do it. Never ever focus on any one source of income in your life. ये सबसे बड़ी एक क्या कहते हैं मिस्टेक होती है हमारी कि एक सोर्स से जब इनकम आना शुरू हो जाती है तो हम कॉन्स्टेंटली उसी पे रिलाई करना शुरू हो जाते हैं. Never be dependent on one source of income in your life because that's going to cripple your resources, your mind, your passion, your focus, everything. क्योंकि आपको फिर लगता है कि ये नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये कुछ नहीं कर पाऊंगी. Never do that. Try to work on your own. सिर्फ Upwork पे, Fiverr पे या फिर अपने प्लेटफॉर्म्स पे काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि you're building your own profile. अब किसी क्लाइंट के लिए काम कर भी रहे हैं तो वो सिर्फ आपकी प्रोफाइल बन रही है, आपकी ब्रांडिंग हो रही है. So do your own branding. Anuj, how freelancing has transformed you as a woman? जैसे मैंने बताया, it has given me so much confidence. Like I'm like each and every one of you कि जिस तरह से हम society से belong करते हैं, I'm like from a very middle class family and like सिवाय पढ़ाई के and everything, I haven't been like a very independent woman कि जो like बहुत travel करती हो या बहुत लोगों से different societies exposed हो. I've never been that kind of a person. But when I started working as a freelancer, when I started working with different companies, I realized कि जब आप लोगों से मिलते हैं, आप जब लोगों को के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जब आपके अंदर स्किल्स अडैप्ट होना शुरू हो जाती है तो आपके अंदर एक इनहेरिट किस्म का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है. यू लर्न हाउ टू present yourself, you learn how to convince people about your skills, you learn how to speak, you learn how to do everything. जब आपके पास सबसे पहली बात, जब आपके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम टू सम एक्सटेंट आ जाती है तो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक कामनेस, एक पॉइज आ जाता है. तो मुझे लगता है कि बीइंग अ वुमन, because I have been working from so many years and from the comfort of my home, from like a very I've worked with certain great companies के जहाँ पे शायद हमें सकता है कि सिर्फ ख्वाहिश होती है काम करना उन लोगों के साथ.
at very good packages. तो जब आप ये चीज़ देखते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है. वो कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ की हर चीज़ में आपको नजर आता है, बिकॉज आपको पता होता है कि यार लाइक आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दीज थिंग्स, दीज आर माई स्किल्स, आई कैन ग्रो मोर, आई कैन अर्न मोर, आई कैन बिल्ड मोर एम्पायर. तो जब आप ये चीज़ों पे आ जाते हो तो आप छोटी छोटी चीज़ों पे अपने आप को स्ट्रेस नहीं करते. आप एक स्ट्रेस कंट्रोल्ड लाइफ गुजारते हो, इंस्टेड ऑफ लाइक थिंकिंग अबाउट what I'm going to do about my life, what am I going to do about my career, and think you stop thinking about those things. You actually work on what you want to do. Okay. Aruj, my next question is that is freelancing something that everyone could benefit from? Okay. Freelancing has a very simple definition. Anything, any service that you provide for yourself, by yourself, to anyone around the world is freelancing. कि आप अगर for example मैं किसी को ये कहती हूँ कि आपके लैपटॉप पे आपसे विंडो इंस्टॉल नहीं हो रही, I can provide you the services of installing your own window. Even that's freelancing. It doesn't matter कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं. Any service that you're providing to a certain group of people, a certain audience, a certain kind of environment, a traffic, that is freelancing. तो हम तो बहुत कॉमन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कंटेंट राइटिंग, एसईओ हो गया, ग्राफिक, वीडियो, प्रोग्रामिंग स्किल्स, वर्डप्रेस एंड ऑल दीज थिंग्स. तो इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें कि लोग अपने जहाँ पे अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं. दे आर सर्टनली यू वुड बी सरप्राइज टू हियर कि कुछ लोग सिर्फ लिसनिंग सर्विसेज देते हैं कि जहाँ पे अगर आप उनको सिर्फ हायर करते हो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, वट एवर टाइम लिमिट दैट इज सेट, कि आप सिर्फ उनसे बात करते हो. दे लिसन टू यू, दे गिव यू देयर एडवाइसेस एंड दैट्स इट, एंड यू पे देम फॉर दैट. दैट इज लाइक दिस इज अबाउट कि आपके अंदर किस किस्म की एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं. तो I would say कि anyone can benefit from this, depending upon they know what their skills are, what their abilities are, and they know how to sell it. Freelancing is a selling kind of a platform कि जब तक आपको अपनी स्किल बेचना नहीं आएगी, आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते. सो एवरी फ्रीलांसर नीड्स टू बी अ गुड मार्केटर ऑफ देयर ओन स्किल्स. तो आप ये छोटी छोटी बेसिक चीजें सीख लें, एक दो स्किल्स अपनी डेवलप कर दें, तो ऑटोमेटिकली यू कैन ग्रो अ लॉट. Okay. Anuj, एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि what would you suggest to young generation who are looking forward to creating a career and don't know what directions to go? Okay, so the most of the important thing is stop stressing about your career. There are a lot of things. अगर आप अपने फील्ड जो आप पढ़ रहे हैं उसकी समझ नहीं आ रही, leave सभी it. रिश्तेदार Stop दो working on घर it. पे जाकर अदरक वाली चाय मांग रिश्तेदारों के सामने ताकि उसको कोशिश करने वाला है. धन्यवाद. Who's that? Guys, please थोड़ा सा प्रोफेशनल डिकोरम मेंटेन कर लिया करें. This is a professional session. Okay. So what I was talking about is कि Zuha, can you please repeat your question? I missed it. Okay. My question is that what would you suggest to young generation who are looking forward to creating a career and don't know which directions to go? Okay, it's very simple. सबसे पहले think before you choose. किसी भी डिग्री में इस मकसद से जाना कि just because I want to graduate, I don't want to sit at my home. Don't do that. Don't waste your money on these crappy things. हमें पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के क्या हालात हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि किस किस्म की स्किल्स हमें सिखाई जा रही है और क्या नहीं सिखाया जा रहा. More or less we are learning almost nothing at our institutes. तो जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि यार सिर्फ डिग्री होना इम्पोर्टेंट नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू अर्न एन इनकम, अ गुड सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर योरसेल्फ, तो एट दैट मोमेंट इट डजंट मैटर व्हाट डिग्री यू आर डूइंग. आप एक फील्ड चूज कर लें, अंडरस्टैंड, लर्न एंड सर्च फॉर पीपल. सर्च के लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या मांग रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है. आजकल आपको पता एआई कितनी डिमांड है, एआई इंजीनियरिंग की डिमांड है. अगर आप थोड़ी सी भी टेक्निकल स्किल्स है, कंप्यूटर learning those things, use YouTube and do everything that you can to just to pinpoint that one service, that one requirement कि डिमांड है ट्रैफिक में, जिसकी डिमांड है आपके आसपास में कि लोगों को ये सर्विस चाहिए और उनको शायद कम मिल रही है या नहीं मिल रही. वो ढूंढे एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन थिंग्स. इट डजंट मैटर, आपको एकदम से कोई बड़ी स्किल उठाने की जरूरत नहीं है.
पिक वन स्मॉल थिंग. अगर आपको फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है कि अगर आपको इवन इन कंटेंट राइटिंग एग्जांपल देती हूँ, यू ओनली नो हाउ टू राइट ब्लॉग्स, दैट इज वन पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग. स्टार्ट फ्रॉम दैट. ब्लॉग राइटिंग शुरू करो, साथ साथ सीखना स्टार्ट करो. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वेब कंटेंट, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कॉपी राइटिंग स्किल्स, ईमेल मार्केटिंग स्किल्स, सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग स्किल्स. टेक वन स्टेप एट वन मोमेंट. एक स्किल सीखो, उस पर काम करो. ट्राई टू अर्न फ्रॉम दैट. व्हेन यू नो कि इसमें से मुझे इतनी अमाउंट आ रही है कि यार दिस स्किल इज गोइंग टू वर्क फॉर मी. बाज दफा हर स्किल हर किसी के लिए काम नहीं करती. आई डू डिजाइनिंग समटाइम्स बट आई नो आई एम नॉट अ गुड डिजाइनर बिकॉज आई डोंट हैव दैट इंटुइटिव स्किल्स ऑफ डिजाइनिंग. ठीक है, आई हैव दैट कंटेंट स्किल. तो ये चीज अपने अंदर एक्सप्लोर करें इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन unnecessary use of social media. Stop doing that. Most of the things that you see on social media, it's not real. Try to focus on the real things. आपके problems real हैं, अपने लिए real solutions ढूंढना शुरू करें. अब जब अपनी skill पकड़ लेंगे, start earning. अगर आपको उसका महीने का 15-20 हज़ार भी आना शुरू हो गया, स्टार्ट फ्रॉम दैट. वहां से शुरू करो, फिर अपनी स्किल को ग्रो करो, अपग्रेड करो. फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा असूल ये है कि जब तक आप अपनी स्किल अपग्रेड नहीं करते, यू कांट ग्रो इन एज अ फ्रीलांसर. क्योंकि आपकी डिमांड मार्केट की उसी तरह से बढ़ती है जिस तरह से आपका टाइम गुजरता है. तो आपको अपने आप को एक लेवल ऊपर लेके जाना पड़ेगा. जैसे started from content, blog writing, then I did web, then I did copy, then I did social media content, then I started working on SEO, off page, on page SEO. So this is something that you have to like constantly grow and evolve in. And trust me, it's not that difficult. आपको लगता है कि शायद हमारी थोड़ा सोसाइटी में थोड़ा सी कुछ इस तरह की सिचुएशन बनाई भी है कि इसको बहुत लेविश किस्म का जो अर्न कर रहे हैं वो अपने आप को इतना बूस्ट कर देते हैं कि लगता है कि शायद ये चीज बहुत मुश्किल है. ऐसा नहीं है. आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आप पे एज अ बिगिनर भी ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज फोकस ऑन योर स्किल एंड बी ऑनेस्ट विद योर सर्विस. कभी भी अपने क्लाइंट के साथ दो नंबरी नहीं करनी. ये चीज बहुत बेसिक है. अगर आप एक दफा दो नंबरी करके उस चीज अर्न तो कर लोगे, अपना उस वक्त का कमा लोगे, माइलस्टोन अचीव कर लोगे, but you're going to lose your client. Make sure कि as the बात करते हैं, जगह बात करते हैं, अपने क्लाइंट को रिटेन करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू डू दैट. जितना आप क्लाइंट्स को रिटेन करोगे उतना ही आप ग्रो करोगे. बिकॉज टू अर्न मोर क्लाइंट्स यू नीड टू इन्वेस्ट मोर. फॉर एग्जाम्पल फॉर अपवर्क, सिंपल सी बात है, अपवर्क आप करते हैं बिड टू बिड ऑन अ प्रपोजल, टू बिड ऑन योर जॉब. प्रपोजल पे जो बिड करते हैं, आप कनेक्ट लगते हैं, उसके अच्छे खासे पैसे लगते हैं. तो वो चीज एक नए क्लाइंट को अक्वायर करने की जो कॉस्ट है वो आप अपनी मिनिमाइज कर सकते हो अगर अपने क्लाइंट्स को रिटेन करो. एंड ऑल यू नीड टू डू इज प्रोवाइड गुड सर्विस and be very humble, be very polite and be very respectful. बाज़ दफा आपको फ्रीलांस फील्ड में बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं. कुछ क्लाइंट्स आपको बहुत रूड होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, वायलेंट होते हैं. But you need to be patient. Be patient because they don't need your money. You need what they are giving to you. ठीक है, अपनी नीड को अंडरस्टैंड करें, उस हिसाब से सीखना शुरू करें. एंड डोंट गो फॉर द मैक्सिमम. हमें लगता है कि एक ही साल में मैंने फ्रीलांसिंग की, जो हम लोग देखते भी है सोशल मीडिया में, और मैं करोड़पति बन जाऊंगा. आई हैव माय ओन BMW and I'll have my own house. That's not how this works. Stop seeing these three things as real. ऐसा नहीं होता. शायद एक के साथ होगा, दो के साथ होगा, सबकी जर्नी सेम नहीं होती. Build your own journey. अरुज, एक क्वेश्चन चैट में है कि what strategies can girls employ to assert themselves and establish credibility in the freelancing world? फ्रीलांसिंग में एक चीज आप याद रखिएगा, what I have experienced in my career up till now, I'm still growing, but freelancing में what I felt is when you work in an international community there is no gender discrimination. सर्विस के टाइम पे आपकी कोई किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती. ऑल दिस सी इज के व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग. अगर आपका काम अच्छा है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो द क्लाइंट डजंट हैव एनी प्रॉब्लम कि आप लड़का हो या लड़की हो. ठीक है, एक चीज लैक करती है फ्रॉम अ सोसाइटी की जहाँ पर शायद स्किल्स सीखी नहीं जाती, इज दैट कॉन्फिडेंस, is the skill of persuasion, the skill of acceptance.
हमारी फीमेल बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। अगर क्लाइंट ने कोई बात कर दी, कोई इस तरह की थोड़ा सा रूड कमेंट कर दिया या कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई कि कोई बहुत टाइट डेडलाइन है और क्लाइंट आपके सर पे चढ़ के बोल रहा है कि यार ये करना ही करना है, करना ही कर रहा है, तो वी लाइक वी स्टार्ट पैनिकिंग। ये चीज नहीं करनी। बॉयज इस चीज में थोड़ा सा ज्यादा केयर फ्री होते हैं, वो थोड़ा सा इजीली इस चीज को हैंडल कर लेते हैं। हम लोग बिकॉज हम इस चीज से गुजरते बहुत कम है तो इस चीज को हम फेस नहीं कर पाते। बट डोंट वरी, लाइक trust me, nobody is going to eat you, nobody is going to do anything about you. No, but even if your client, all they can do is they're responsible for one project that they're doing for you. इससे इतना घबरा कर इतना करके अपना अपनी मेंटली अपनी हेल्थ को खराब करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इस मोमेंट पे all you have to do is be calm and convince the other person. अगर आपको लग रहा है आपसे वो नहीं हो रहा, seek help. There are a lot of people in your community जो शायद आप नहीं कर सकते, वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं उस चीज में। बट सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है फ्रीलांसिंग का सबसे बेसिक गोल है। अगर आपको सोल्यूशंस ढूंढना नहीं आता तो फ्रीलांसिंग में नहीं चल सकते, बिकॉज यहाँ पे हर मोड पे हर एक स्टेप पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स मिलेंगी। एक डिफरेंट क्लाइंट मिलेगा जिसका एक डिफरेंट टेम्परामेंट होगा, एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी, एक डिफरेंट तरीका होगा बात करने का। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं होंगी अपने आप को काम रखने की, स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की, हम लोग को आदत है ना थोड़ा सा, आई वुड से कि हम बहुत लाडले होते हैं, लड़कियों हमारी फीमेल्स अक्सर बहुत लाडली होती हैं अपनी फैमिलीज में, तो हमें कोई ऊंची आवाज में बात कर ले, कोई रूड कमेंट करे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम फौरन से नाराज होकर बैठ जाते हैं। तो प्लीज लर्न वन थिंग, क्लाइंट आपका कोई दोस्त नहीं है, क्लाइंट आपकी फैमिली नहीं है, वो आपकी नाराजगी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस मोमेंट पे यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल एंड ट्राई टू एक्ट एज प्रोफेशनल एज यू सी एनी अदर पर्सन इन योर सोसाइटी। आपको अगर कोई आपका रोल मॉडल है जो आपको लगता है कि दिस पर्सन हैज सच अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, कि ये बहुत प्रोफेशनल है, बहुत काम है, ट्राई टू इमिटेट दोज हैबिट्स इनटू योरसेल्फ, बिकॉज ये चीज आपको हर जगह काम आती है, सिर्फ काम में नहीं, हर जगह जहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, आप अपनी ब्रांडिंग करने की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोटी छोटी चीजों पे घबरा जाओगे तो you may grow, but it would take a lot of time for you to reach there, कि जो शायद आपके कंपैरेटिवली आपकी सॉफ्ट स्किल्स जिसकी ज्यादा अच्छी हैं वो उसमें शायद जल्दी पहुंच जाए। तो बस सॉफ्ट स्किल्स पे भी उतना ही काम करने की जरूरत है जितनी अपनी बाकी स्किल्स पर। बिल्कुल ऐसे ही है रुच। यहाँ एक और चीज थे, इफ दे हैव एक्सपर्टीज लाइक कंटेंट राइटिंग हो गई, ब्लॉग राइटिंग हो गई, तो उनको किस तरह स्टार्ट करना चाहिए कि वो किसी प्लेटफॉर्म पे जाएं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कुछ इस तरह की सजेशन या कोई आइडिया कि एज अ फ्रीलांसर जब हम भी गए थे तो हमें पता नहीं होता था कि हमने फेसबुक पे कहाँ जाना है, हमें क्लाइंट कैसे मिलेंगे, तो इस तरह का कोई सजेशन या कोई फीडबैक आप अपने बारे देंगी कि ताकि अच्छा, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, देयर इज अनदर comment in the chat box about Fiverr and Upwork. I've personally worked on Upwork. मेरा Fiverr से experience नहीं है because मैं बीच में when I started my career I was working more on remote jobs. तो उन jobs की वजह से मैंने freelancing पे बहुत late start किया. But when I started on Upwork, और Upwork पे मुझे बहुत जल्दी वो results मिलना शुरू हो गए जो मुझे अभी तक Fiverr पे शायद नहीं मिले. तो comparatively I would prefer Upwork. About the Zoha's question, it is very simple. As I said, start building your brand. आपको जब skill आती है, LinkedIn is a very great platform. I don't know people कि जो शायद LinkedIn पे उनको समझ में नहीं आता. LinkedIn is very easy. All you have to do is build yourself over there. आपको पता है LinkedIn पे इतनी अच्छी आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं कि लोग शायद आपको खुद रीच आउट करेंगे किसी सर्विस के लिए. If you are good at writing, start writing your blogs on LinkedIn. अपने ब्लॉग शुरू करो जब तक आपको कोई क्लाइंट मिल नहीं जाता. अपवर्क पे, फाइवर पे, इवन फाइवर इज गुड, अपवर्क इज गुड, बट थोड़ा सा इशू वहाँ पे ये है कि आपको अगर आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यू कांट स्टार्ट ऑन अपवर्क जब तक आप कनेक्ट्स बाय करने के पैसे नहीं है आपके पास या एनीथिंग. तो इस चीज में थोड़ा सा आपको स्ट्रेसफुल हो जाता है बंदा. तो मुझे ये लगता है कि स्टार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जहाँ पे अपवर्क पे भी आपको कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो शो करना पड़ता है. इवन ऑन फाइवर यू हैव टू शो सम ऑफ योर वर्क. तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज थिंग्स फ्रॉम लिंक्डइन, फ्रॉम इंस्टाग्राम, फ्रॉम फेसबुक पे बहुत से ग्रुप्स हैं फ्रीलांसिंग के जहाँ पे आप ज्वाइन करें. व्हाट्सएप के बहुत से लोग आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज को मतलब सेल भी करते हैं और जिनको चाहिए होती है वो वहाँ पे हायर भी करते हैं. तो इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नेटवर्क. आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको आपको शायद नहीं पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज सर्टन पीपल दे आर लाइक
they try to work alone, they love to work alone, and they have their own kind of comfortable zone, but they are very skillful. Try to connect with those people. आपको फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस चैट, आई वुड जस्ट से अनदर नेम, रिदा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल रिदा इज अ ग्राफिक डिजाइनर, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, बट मुझे पता है कि रिदा की डिजाइनिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो मैं क्या करूंगी कि जो मेरे पास एक काम आया, एनी प्रोजेक्ट दैट आई हैव गॉटन, कि यार किसी को चाहिए ग्राफिक डिजाइन एक प्रोजेक्ट के लिए, किसी ने अपनी कोई पोस्ट डिजाइन करवानी है, ठीक है, आई गिव Rida call, I leave her a message कि Rida, this is the project, you want to do it or not, if you're interested pick this up, तो मैं इसको कनेक्ट करवा दूंगी उस क्लाइंट के साथ या उस नींदी के साथ, वहां पे रिदा का काम हो गया। अब ये होगा कि रिदा को पता है कि यार अरूज की ये स्किल्स है, since she has helped me out, now next time if I get anything related to content SEO, I'm going to like refer to her, refer, train your own network। बाज दफा आपके आसपास इतना कुछ हो रहा होता है, बट बिकॉज यू डोंट नो एंड बिकॉज यू डोंट टॉक अबाउट इट, यू मिस दोज थिंग्स। तो अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट ज्यादा बेहतर करें एंड ट्राई टू सी के वो क्या कर रहे हैं, उनकी स्किल्स को एक्नॉलेज करें, और अगर किसी की नीड आती है तो ट्राई टू रेफर दोज पीपल, ट्राई टू एड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू देयर लाइव्स। जब ये करना शुरू कर देते हो तो फिर लोग आपको भी रेफर करना शुरू कर देंगे। बाज़ दफा आपको खुद पता नहीं चलेगा कि प्रोजेक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, बट दे विल कम, बिकॉज रिस्क का वादा तो अल्लाह की तरफ से, बट आप जब ये स्ट्रगल करना शुरू करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली चीजें आ जाती हैं। सो वंस यू लाइक यू हैव सर्टेन अमाउंट, आपको लगता है कि मैंने इतना काम कर लिया, थोड़ी सी भी एक्सपर्टीज है, क्या मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जा सकती हूँ, तो स्टार्ट विद Upwork, start with Fiverr, people per hour, we work remotely and do everything. मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि इन एडिशन टू फ्रीलांसिंग आई ऑलवेज डन अ जॉब, रिमोट जॉब, तो मैंने दोनों चीज़ें साइड बाय साइड की हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन चॉइस। किसी कोई कंफर्टेबल है जॉब में करे, नहीं करना चाहता बिल्कुल ना करे, दैट डिपेंड्स हाउ मच टाइम, हाउ मच एफर्ट यू वांट टू पुट इनटू समथिंग। तो start with basic social media platforms, start networking in your own environment, your own society, in your group of people. When you do that, again आपके पोर्टफोलियो जैसे ही बिल्ड होगा तो बाज़ दफ़ा आपको फिर खुद शायद किसी को रीच आउट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, प्रोजेक्ट खुद आप तक आएंगे। Okay, Ruj, a question in the chat box में कि what are some common challenges you have faced as a freelancer when starting your career? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि because it was something as I started as a hobby, I didn't seek much guidance from others. मैंने बहुत लेट मोमेंट पे जाके जो है ना फेलो फ्रीलांसर्स के साथ कनेक्ट करना शुरू किया, हेल्प लेना शुरू की। तो आई स्टार्टेड डूइंग जॉब्स, तो जॉब्स मुझे इजी लगती थी बिकॉज आई वाज वेरी इजी गोइंग, आई न्यू दोज पीपल, तो मैं बहुत इजीली कर लेती थी, आई न्यू कि मैंने क्या करना है, एक मेरा मंथली गोल है वट एवर। बट व्हेन आई स्टार्टेड विद फ्रीलांसिंग, आई स्टार्टेड ऑन अपवर्क, प्रोफाइल ग्रो नहीं कर रही, किसी प्रपोजल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, देयर आर नो व्यूज ऑन योर प्रोफाइल, आप कनेक्ट्स बाय किए जा रहे हो, प्रपोजल्स ले जा रहे हो, बट नथिंग इज वर्किंग आउट। सो दीज आर वेरी कॉमन चैलेंजेस, और ये चीज़ें बढ़ रही हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, फ्रीलांसिंग इज गेटिंग मोर एंड मोर चैलेंजिंग डे बाय डे। बट इस चीज़ में अगेन आपके क्लाइंट्स के साथ बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि बिकॉज हमारा थोड़ा टाइम जोन का डिफरेंस है, आई हैव वेरी क्वाइट आई वुड से अनयूजुअल काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस कि मैं रात को काम करके सबमिट करके सोई हूँ, एंड सुबह अगर मैं फजर टाइम उठी हूँ तो लाइक मेरा चैट बॉक्स भरा हुआ है क्लाइंट के रिस्पॉन्सेस से, ये चेंजेस कर दे, ये चेंजेस कर दे। सो लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम मोमेंट, तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। बट अगेन अगर आप एट द एंड ऑफ द डे यू आर हैविंग the success or having the results that you want to achieve, even अगर उसका 50% भी, तो it's worth it। ठीक है, तो चैलेंजेस है, हर प्लेटफॉर्म के अपने चैलेंजेस हैं, हर स्किल के अपने चैलेंजेस हैं, बट उनको इजी ओवरकम करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी स्किल के साथ वाले लोगों के साथ कनेक्ट हुए। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, अपने साथ वाले बंदे से पूछे कि यार ये चीज़ आप मुझे बताओ, मैंने कैसे करनी है। मे बी शायद कुछ लोग मना कर देते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी, अभी भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं कि जो आपको गाइड करेंगे, एंड दे विल गाइड यू वेरी वेल। तो try to seek help from those people, try to learn from those people, listen, लिसनिंग स्किल्स अपनी बहुत अच्छी बनाएं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी बनाएं, जहाँ कोई कंटेंट पढ़ते हैं अपनी स्किल से रिलेवेंट, रीड इट थॉरली, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन, स्टे अपडेटेड विद ट्रेंड्स। इंशाल्लाह ये चैलेंजेस आस्ता आस्ता मतलब जैसे जैसे आप ग्रो करते रहते हैं खुद बहुत कम हो जाते हैं। Okay, एक और क्वेश्चन है, how to grab a remote job in content writing? Okay, that depends upon what platform you're using. LinkedIn पे start करें, LinkedIn पे अपने आप प्रोफाइल बिल्ड करके you can put some filters over there.
एंड आप रिमोट जॉब्स वहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट करें, ठीक है। और उसके बाद भी वो रिमोटली है आपके पास, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आपको रिमोट जॉब्स मिल जाती हैं। बट अगेन इन जॉब्स को एक्वायर करने के लिए भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस वो मांगते हैं, एक सीवी मांग रहे हैं या कुछ भी। अगर आपको स्टार्ट में कुछ कम अमाउंट में भी काम करना पड़े, डू इट। आई स्टिल नो कि जब मैंने स्टार्ट किया था बैक इन 2020, आई यूज्ड टू राइट लाइक 50 आर्टिकल्स फॉर लाइक 6 to 7,000 per month. 50 articles for 6 to 7,000, that is like I would say inhumane amount है, वो कुछ भी नहीं है, like it's like a injustice to what I was doing. But again I needed that experience, I needed to learn कि किस तरह से काम करता है, तो उस वक्त मुझे जो मिला मुझे करना पड़ा। तो ये चीज़ आपने देखनी। और प्लीज फ्रीलांसिंग में डोंट स्किप एनी अपॉर्चुनिटी। कभी ये नहीं सोचना कि मुझे बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं करूंगी, आई कांट डू छोटा वाला प्रोजेक्ट, आई कैन वर्क ऑन दिस थिंग्स। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू। जो मिलता है करो, try to grab as many projects as you can manage, as you can work on in quality time, और करो। छोटा मिलता है छोटा करो, बड़ा मिलता है बड़ा करो, but करो, because the more practice you get, the more experience you get. Yep, someone has raised their hand. There are many more who want to start content writing or graphic designing, remote jobs, but have no experience previously but do have skills. What would you suggest for them to start? A skill without experience is a no skill. सिंपल सी बात है। मैं जैसे कहा है, अगर कोई स्टार्टिंग में कोई बंदा आपको कहता है कि यार ये काम, एक पोस्ट मुझे डिजाइन कर दो, फ्रेंड कहता है कि एक पोस्ट अच्छी से डिजाइन कर दो यार, फ्री में कर दो, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। जो स्किल वाला बंदा होता है ना, वो मुफ्त में अपनी स्किल बेचना उसको बहुत हर्ट करता है, जिसने मेहनत की होती है। बट स्टार्ट में आपको करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा आपको सिर्फ एक गुडविल के तौर पर कुछ लोगों के लिए काम करना पड़ता है, जस्ट टू बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो। आपके पास एक्सपीरियंस जैसे जैसे बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, आपकी प्राइसेस, आपके रेट्स, आपकी पैकेजेस उतने अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। तो नहीं कर पा रहे होते, आपको शायद आप किसी को फ्रेंड है, आपका कोई बिजनेस कर रहा है, आपको नजर आ रहा है कि यार इसके सोशल मीडिया जो है ना, मतलब काम ही बहुत अच्छा कर रही है, ये काम बहुत अच्छा कर रहा है, बट आपके आसपास कुछ भी स्टार्टेड। आई हैड सम आइडिया विद अ कपल ऑफ माय कलीग्स, और हम लोग शॉप्स पे, जो बिजनेसेस, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं हमारे आसपास, वी स्टार्टेड विजिटिंग देम एंड वी टोल्ड देम कि हम आपकी वेबसाइट बिल्ड करेंगे या आपका सोशल मीडिया चलाएंगे। एंड यू वुड बी सरप्राइज कि मेरे ख्याल से हमसे 5 या 6 स्टोर्स मतलब हमने विजिट किए थे, और उनमें से 2 के हमें ऑर्डर्स मिल गए थे। इट वाज लाइक एन अ वेरी इनफॉर्मल वे ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स, बट यू सी द नीड ना। आपको पता है कि यार इन लोगों को शायद इतना आइडिया नहीं है कि अपवर्क पे क्या है, फाइवर पे क्या है, बट इन्हें पता है कि यार हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, हमने अपनी मार्केटिंग करानी है। तो आप जब जाओ उनको कहो कि यार आपका ये काम हम कर देंगे, वहां से आपको क्लाइंट मिल गया। तो मतलब आप अपने आसपास इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि मेरे आसपास अगर कोई काम कर रहा है तो उसको किस चीज़ की नीड है, तो करो। इवन आपकी राइटिंग स्किल्स में, एकेडमिक राइटिंग के बारे में बहुत सवाल उठते हैं, एथिकल कंसर्न्स भी हैं। आई वोंट गो इनटू दैट डिबेट, काइंड ऑफ डिबेट के वो ठीक है गलत है, आपको अपना पर्सनल एक कॉन्शियस से आप उस चीज़ को जज कर सकते हो। पर अगर आपके किसी फ्रेंड को किसी असाइनमेंट में हेल्प चाहिए, हेल्प देम आउट। आपका कोई इस तरह का कोलीग है जो आपको पता है कि यार मार्केटिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा सा इसको सोशल मीडिया कंटेंट में हेल्प कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, टॉक टू देम कि यार कंटेंट मैं लिख दिया करूंगी, यू कैन डू द रेस्ट ऑफ थिंग्स। एंड यू विल बी सरप्राइज कि लोग आपको बहुत अकोमोडेट करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। तो जब आप थोड़ा सा किसी के साथ शायद स्टार्ट में अगर फ्री काम कर भी रहे हो, तो बाद में वो चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। ये चीजें लता जी कर रहे हैं काम से, मैं आईफोन से के नहीं बने हम आप। हाँ जी, सरगम कुरैशी। जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम मैंने हैंड रेज किया था वालेकुम तो अस्सलाम। शायद माइक काम नहीं कर रहा था। एक्चुअली वांट टू आस्क कि मेरी फील्ड ज़रा डिफरेंट है। आई एम इनटू एनर्जी सेक्टर but I want to learn SEO. So you can say I want to start from scratch. So what do you want to suggest for the amateur and beginners?
ओके, एसईओ में जो है ना 2 स्किल्स मेजर है। एक तो आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, जो कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक अगर उनको कोडिंग्स वगैरह समझ में आती हैं, वेबसाइट्स की बैकएंड समझ में आती है, तो एक तो वो स्किल है। दूसरी एसईओ में कंटेंट की चीज़ है, ठीक है? एसईओ में कंटेंट का एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। सो व्हाट यू कैन डू इट्स स्टार्ट फ्रॉम यूट्यूब, छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स वॉच देखना शुरू करो। बट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट गो डायरेक्टली इनटू एसईओ। सबसे पहले सीखो कि यार अगर मैंने ऑफ पेज में कोई गेस्ट पोस्ट करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। गेस्ट पोस्टिंग आ गई, उस पर एक दो दफा प्रैक्टिस कर ली, हो गया। लिस्टिंग करनी है तो कैसे कर सकता हूँ। हाँ, सिंपल सी बात है, अब मैंने वर्डप्रेस पे कोई ब्लॉग पोस्ट करना है, पब्लिश करना है, तो कैसे पब्लिश करते हैं वो आ गया। तो फिर देखना है कि यार पब्लिश करके मैंने उसकी एसईओ कैसे करनी है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इंटरनल लिंक क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक क्या होता है। एक एक स्टेप को सीखो। इतना जब समझ में आ जाता है कि यार देखो इतनी स्किल है मेरी कि 60% कि अगर मैं किसी के साथ मिल के काम करूं तो आई कैन कंट्रीब्यूट टू दैट। अपने आसपास लोगों में देखो, अगर कोई एसईओ वाला बंदा है, कोई इस तरह का काम कर रहा है, तो आप उससे कहोगे यार आई वांट टू जॉइन योर टीम, आई वांट टू वर्क विद यू, आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। उनके साथ जब सीखोगे तो ऑटोमेटिकली जो टेक्निकल स्किल्स है ना वो भी एक्वायर कर जाओगे। बिकॉज इवन आई एम फ्रॉम मेडिकल फील्ड, आई स्टिल जहाँ पे मैं जॉब्स करती हूँ, जिन क्लाइंट्स के मैं साथ काम करती हूँ, दे ऑफन आस्क मी यार रुच मेड करके तो आप यहाँ पे कैसे हैं। तो आई टेल देम कि हेलो। देखो इट्स अबाउट डेस्टिनी, इट्स अबाउट योर ओन चॉइसेस कि व्हाट यू डू। राइट। अगर फॉर एग्जांपल मैं फर्दर ये पूछना चाहूँगा, इफ़ आई वांट टू लर्न फ्रॉम सम प्लेटफॉर्म, लाइक इफ मैं यूट्यूब में सिंपल गूगल के ही प्लेटफॉर्म से लर्न करूँ, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझे प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगी? क्योंकि बेसिकली मैंने बहुत से कोर्सेज लिए हैं ऐसे ही होगी, लेकिन व्हाट आई गॉट फ्रॉम इज दैट कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, देयर इज नो टास्क बेस्ड वर्क, तो आप लर्न नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास वो कंडीशन बेस्ड सिचुएशन नहीं आएगी। सो व्हाट यू आर एग्जैक्टली रिकमेंडिंग फॉर दैट? हाँ, दिस इज एग्जैक्टली। अच्छा, लर्निंग के लिए मुझे ये लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा सीखते हो करके। ठीक है, आपके पास जब एक दफा बेसिक नॉलेज आ जाती है ना, आप ऐसा करें, आप लिंक्डइन पे जाएं, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें और स्टार्ट पोस्टिंग। Create a post, create a couple of posts, reaching out to people कि I have learned these skills and I want to work with people who are already working on these skills। कि ऐसे भी अगर कोई काम कर रहा है, I want to help, I want to assist them। कि जब बाज लोग शायद आपको पार्ट टाइम पे या लाइक मे बी शायद कम अमाउंट में सही, लेकिन स्टार्ट पे आपको अपने साथ रखना शुरू कर देंगे, तो फिर आपको टास्क असाइन करना स्टार्ट कर देंगे। मे बी दे स्टार्ट असाइन यू टास्क अबाउट ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज कुछ भी, कोई एक छोटा टास्क, एक या दो टास्क पे स्टार्ट करेंगे। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दोस थिंग्स ना, तो ऑटोमेटिकली आप लर्न करोगे। अब इसमें ये चीज है कि विदाउट एक्सपीरियंस कोई फुल टाइम जॉब के लिए हायर करता नहीं है, ठीक है? और दैट इज वेरी रीजनेबल टू। आप किसी को कह नहीं सकते यार आप मेरे पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करो, कि जबकि मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है। सिर्फ आई सेड कि स्किल विदाउट एक्सपीरियंस मींस नथिंग टू द क्लाइंट। तो आपने ये करना है कि आप लिंक्डइन पे जाए, सोशल मीडिया पे जाए, अपनी कम्युनिटी में ये चीज डिस्कस करें कि मैंने ये चीज करनी है, वांट टू डू प्रैक्टिस ऑन दीज थिंग्स। कि अगर कोई एसईओ का बंदा है तो मुझे एक आध टास्क दे दे, आई वांट टू वर्क ऑन दोस थिंग्स। शायद कोई अनपेड भी करवा ले एक आध टास्क, बट जब उनको लगेगा कि यार आपकी स्किल अच्छी है, तो यू कैन communicate with them, you can negotiate with them कि यार इसको पेड पे मूव करते हैं, I want to like join full fledged with you। पर वो चीज में it takes time, it takes a certain kind of steps। अभी भी मुझे लगता है कि मैं जितना कंटेंट में ग्रो कर दिया, मैंने वो एसईओ में नहीं कर सकी, बिकॉज ऑफ अभी भी आई हैव टू लर्न सर्टन टेक्निकल स्किल्स के जो अभी भी मिसिंग है। एसईओ इज अ वेरी वास्ट फील्ड, इट इज एवर ग्रोइंग फील्ड के जिसमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, एज आई सेड, नेटवर्क विद योर पीपल, ट्राई टू टॉक विद देम एंड टेल देम कि यार मैं ये करना चाह रहा हूँ। यू विल बी सरप्राइज्ड कि बहुत से लोग आपको हेल्प आउट करने के लिए वहां पे तैयार होंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यू दिस वाज वेलकम। ऑल फ्रॉम माय साइड। यू वेलकम। अगर किसी का कोई मजीद क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में हैंड रेस कर दें। जी आयशा। व्हाट इज I wanted to ask कि in the era of Gen AI आप content writers और social media managers की jobs in the future किधर देखती हैं? Because अगर कोई भी social media में या content writing में start करना चाहता है, everyone is like कि ये jobs replace हो जाएंगी AI से। So आपके इसके regarding क्या point of views हैं? इट्स वेरी सिंपल आयुष। जेन एआई को, चैट जीपीटी को यूज करना itself is a very big skill।
हर कोई नहीं कर सकता। अब जैसे जैसे आपको पता है रेवोल्यूशन आ रही है एआई में, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एज आई सेड इन अर्लियर, कि आपने एआई को ट्रेन किस तरह करना है कि वो आपको उस तरह का कंटेंट दे। काइंडली म्यूट योरसेल्फ। हाँ, सो आपने उसको ट्रेन कैसे करना है कि यार ये मुझे कंटेंट पीस चाहिए, आई वांट यू टू राइट दिस ब्लॉग। मैं आईफोन से नहीं। Apologies. खैर, you have to train that, you know, specific software to start learning those things. अगर आपके, मुझे अभी भी बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिन्हें एआई कंटेंट ही चाहिए, मतलब एआई जनरेटेड कंटेंट चाहिए, इटसेल्फ एआई कंटेंट ना हो, बट दे अलाउ इट, दे लाइक अप्रिशिएटेड कि यार आप प्रॉम्प्ट से वहाँ पे दो और आप वहाँ से टेम्पलेट्स निकालो, वहाँ से कंटेंट क्रिएट करो, बट मेक श्योर इट हैज दैट ह्यूमन टच। ह्यूमन टच एक आपको 100% जॉब्स जो है ना कंटेंट की, उसमें से शायद 90% ऐसी होंगे जिनमें आपको कहेंगे कि यार यू कैन यूज एआई बट वी नीड इट लाइक ह्यूमनाइज्ड। I want the human touch because you know Google itself is not, it's very smart from these AI softwares. वो वहाँ पे constantly भी revolution इस तरह से ला रहा है कि वो अब टोटली एआई कंटेंट को रैंक नहीं होने देगा, वो उसको फ्लैग कर देगा, उन वेबसाइट्स को फ्लैग कर देगा। तो जैसे जैसे ये रेवोल्यूशन एआई में आ रही है, इसी तरह से जो नीड है गूगल की रैंकिंग की, एसईओ की जो नीड्स हैं या सोशल मीडिया मार्केटिंग की नीड्स हैं, या लोगों की अपनी परसेप्शन, अब लोगों को इजीली एआई कंटेंट अंडरस्टैंड हो जाता है, वो उसको फौरन से पकड़ लेते हैं क्योंकि अब उन्होंने इसको इतना देख लिया कि दे नो द पैटर्न, दे नो द फ्रेजेस। तो ये चीज़ अब कॉमन हो गई है। अब लोग इस चीज़ से तंग आकर उनको दोबारा ह्यूमन कंटेंट की तरफ जाना ही पड़ेगा। किसी भी स्किल की नीड खत्म नहीं हो सकती। इवन इफ द सॉफ्टवेयर आर देयर, यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू गिव डायरेक्शंस टू दोस सॉफ्टवेयर्स। तो ट्राई टू लर्न दैट कि अगर आपको कंटेंट की काम नहीं मिल रहा, अगर को आपको कह रहे हैं कि यार एआई कंटेंट इज ओके, आई जस्ट वांट टू यू टू क्रिएट अ एआई कंटेंट but give it a human touch and publish it according to, you know, SEO guidelines and everything. Learn that, even that is a job. उसको थोड़ा सा अपने, मतलब रेवोल्यूशन जैसे जैसे आ रही है उसके हिसाब से अपने आप को भी अडेप्ट करना शुरू करें। Okay, Ruth, there was one more question. What is the difference between content writing and creative writing? ओके, कंटेंट राइटिंग के सब डोमेन्स हैं, ठीक है। उसमें आपकी कॉपी राइटिंग भी आती है, उसमें आपकी एकेडमिक राइटिंग भी आती है, उसमें आपकी क्रिएटिव राइटिंग भी आती है, उसकी ब्लॉगिंग भी आती है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो क्रिएटिव राइटिंग इटसेल्फ इज समथिंग, सुने आप मैं खड़ा काम कर रहा हूँ तो उनमें वार क्रिएटिव राइटिंग इटसेल्फ एज द नेम सजेस्ट, जैसे हम लोग बचपन में लिखते थे शॉर्ट स्टोरीज, यू नो, ब्लॉग्स, क्रिएटिव ब्लॉग्स विद सर्टेन काइंड ऑफ स्टोरी लाइन्स एंड एवरीथिंग। इटसेल्फ कंटेंट इटसेल्फ इज लाइक एनीथिंग दैट इज कंटेंट। वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, और फिर कंटेंट राइटिंग इटसेल्फ में फिर आगे से डिविजन्स आ जाती हैं, जिसमें क्रिएटिव राइटिंग इज अ सब डोमेन, जिसमें आपकी स्टोरीज क्रिएशंस होती हैं, मूड बोर्ड्स होते हैं, कुछ आपके सोशल मीडिया किस तरह का कंटेंट होता है दैट इज क्रिएटिव इन नेचर, यूट्यूब के स्क्रिप्ट्स होते हैं, ये सब कुछ क्रिएटिव राइटिंग में आ जाता है। कंटेंट सिर्फ मेनली ब्लॉग्स, आपका वेब कंटेंट, आपकी एसेज, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। ओके, किसी का कोई मजीद क्वेश्चन है या अरूज आप कोई मजीद डिस्कशन करना चाहें तो आप कर सकती हैं। दैट्स ऑल द क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड। No, Zohar, that's all from my side. अगर किसी को क्वेश्चन है, they can ask. Thank you so much for providing this wonderful opportunity to me and to like guide you guys and to talk to you guys, because I know बहुत रमजान में बहुत मुश्किल है टाइम निकालना. It is a very, you know, tough routine for all of us. But again, I wish and I'm hopeful कि आप में से किसी को कुछ भी contributing लगा हो, उसको कुछ इस चीज़ से फायदा हो, तो I'll be very happy. And you guys can reach me out on LinkedIn, inshallah. Okay, thank you so much, Aruj and GDSCIIUI for providing us the platform to speak. If further anyone have more questions, you can reach out us out via WhatsApp or our LinkedIn आपके profile. मम्मी ने भी आपको हॉलिक चॉकलेट पिला के सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी आपकी हाइट नहीं बढ़ी। Thank you for joining this session, everyone, and thank you so much, Aruj and Zoha. Closing the session with gratitude for your participation and enthusiasm. I think we should wrap up now, as Thank you there so are no much. more questions.
Okay, thank you so much. Have a happy Ramzan, everyone. Allah Hafiz. You too. Hafiz. Allah Hafiz.